A very good morning to all of you. Today we will discuss about the concept of law of demand of chapter number 5. In this concept, previously we have studied about the concept of the demand and quantity demanded, as well as the factors of which leads to the demand, or we can say the determinant of demand, individual demand and market demand. Now the one of the law is there, that is the law of demand. So what do you mean by the law of demand? As per the law of demand, simply in the simple language, we can call that if the prices of one commodity will increase, it will lead to the decrease in demand. And if the prices of the one commodity decrease, it will lead to the increase in that uh, demand of that particular commodity. So simple thing we can call कि law of demand के according क्या होता है? The first one main assumption is there that other things being equal. Other things means कि जितने भी determinant हमने study किए हैं ना, वो सभी के सभी constant हैं. Okay? क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस आएंगे? प्राइजेस में. कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी विद अ डिक्रीज इन ऑन प्राइस, एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी विद एन increase in the on price of the commodity. So there is a negative relationship between the quantity demanded and its on price. But one of the assumption is there that other things being constant, other things being constant, it means rest of the another determinants of demand will remain constant, only excluding the prices of that commodity. कि बाकी सभी चीजें इक्वल रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? उसी कमोडिटी के पर्टिकुलर प्राइसेस में चेंजेस आएंगे. So the proper definition is there, that what do you mean by the law of demand? It states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between the quantity demanded and price of the commodity. Now we just have to explain the law. In economics, if there will be any kind of law, you should have to explain it firstly with the help of the proper meaning, then definition, then the explanation. And explanation can be done with the help of the schedule and diagram, both of the terms. Okay, so initially here we will discuss the explanation of the law of demand with the help of the demand schedule and diagram. So as per the demand schedule, we can call here that if the prices here simply the prices were 10, 9, x, it means it is decreasing. So as per the increasing rule, if the prices are decreasing, then quantity demanded will increase 100, 150 and 200. So the prices are decreasing, quantity demanded is increasing. This is the simple law. अगर आप opposite side से भी लेके चलेंगे कि 8, 9, 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? 200, 150 एंड 100. So the simple opposite relation is there existing between the prices and the quantity demanded of a commodity. It can be proved with the help of a diagram also. Suppose this is the quantity, these are the prices, this is our demand curve. The simple original prices are this, original quantity is this. और अगर आपके prices down हो जाएंगे, suppose P1, then the quantity demanded will increase. Okay, as per the simply law of demand, the prices will if the prices will decrease, the quantity demanded will increase. कि आपकी क्वांटिटी जो थी, आपके जो प्राइजेस थे, वो सिंपली क्या हुए? P से P1 हो गए, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 हो गई. Now the question is, what are the basic assumptions of law of demand? अगर कुछ बेसिक assumptions हैं कुछ जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, we were saying the other things being constant और other things being same. ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा हम क्या कहेंगे? बाकी चीजें जो है वो सेम है, तो क्या होगा?
The means the proper assumptions are there. What are that assumptions? The first one assumption is there, taste and preference of the consumer. अदर हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या थे? द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड वाज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, income of the consumer, taste and preference, and future expectation. Okay, these were the five main determinant of the individual demand. अब हमने ऑन प्राइस के लिए तो बोल दिया there is a relationship between the prices and the quantity demanded. Now the rest one four factors are there. Taste and preference of the consumer remain constant. No change in the income of the buyer. Prices of the related goods also do not change, and consumer do not expect any kind of the change in the availability of the commodity in near future. So it means, in short, we can call that rest of the four of the factors of determinant is constant. Now the question arises कि ऐसा क्यों होता है? Why the law of demand holds good? Or we can call why our demand curve is sloping downward? ऐसा क्यों है? What are the basic reasons behind of it? The first one reason is there, that is the law of diminishing marginal utility. As we have studied already in our utility analysis chapter, कि जो हमारी marginal utility है that goes reduced after the consumption of more and more consumption of the units in a continuous time. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, कंज्यूमर क्या करेगा कि जितनी भी वो एडिशनल यूनिट परचेज करेगा वो उसके लिए कम से कम प्राइस देना प्रेफर करेगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या है, रिड्यूस होती जा रही है. राइट. सेकेंड वन इज देयर, दैट इज द इनकम इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट में मेनली क्या होता है, देखो इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब आप एक एक्चुअल में सपोज कि एक पर्सन की इनकम फिक्स्ड है, लेट अस अज्यूम दैट द पर्सन इनकम इज फिक्स्ड 10,000. इसकी हेल्प से वो 20 टर्म्स को परचेज कर सकता है. पर्सन की इनकम में कोई चेंज नहीं आया. सपोज उस प्रोडक्ट, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए, अब कस्टमर जो है वो 25 यूनिट्स परचेज कर सकता है. तो यहाँ पर क्या होता है, द मेन थिंग, द द इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज रियल इनकम. मीन्स कि जो हमारी इनकम होती है, दिस इज द मोनेटरी इनकम. इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज द मोनेटरी इनकम. But the income which is in terms of goods and services, that is termed as the real income. Okay, तो इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं, इट जस्ट लीड टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की, विद ए फॉल इन द प्राइसेस रियल इनकम इंक्रीजेस. मींस कि प्राइसेस कम हो गए, इनकम वैसे की वैसे है, बट अब कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है. क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए हैं. सो दैट अल्टीमेटली हैपेंड, और इट जस्ट लीड टू द इंक्रीज इन द ओवरऑल डिमांड. कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, इनकम तो उतनी उतनी है, बट कंज्यूमर क्या है, अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सेम इनकम. दैट इज नोन एज द इनकम इफेक्ट. थर्ड वन इज देयर, दैट इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो सब्सटीट्यूशन क्या होता है, देखो जनरली सब्सटीट्यूशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सब्सटीट्यूट गुड्स. कि सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, विच कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ईच अदर, लाइक टी एंड कॉफी. तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सिंपली विद द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वी कैन कॉल कि एक द मेन थिंग कि दूसरी कमोडिटी को अगर हम एक की जगह पे यूज कर रहे हैं, इट जस्ट लीड टू द लेस एक्सपेंसिव. कि लगाइए कि सपोज प्रोडक्ट एक्स है, उसके खुद के प्राइसेस कम हो गए, तो इट मींस कि वो वाई के कॉम्पीट में सस्ती हो गई, और x जो है वो y के लिए सब्सटीट्यूट है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज आल्सो द एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी x, ड्यू टू विच रीजन कि क्यों, वो कि वो y का सब्सटीट्यूशन है. यहाँ पर मेन इम्पैक्ट क्या आएगा
कि सपोज टू प्रोडक्ट्स आर देयर एक्स एंड वाई, हम एक्स और वाई को एक दूसरे के प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, और सपोज वाई एक्स के प्राइसेस डाउन हो गए, देन व्हाट विल हैपन कि जो वाई के कस्टमर हैं वो भी शिफ्ट होके किस पे आ जाएंगे, एक्स पे। अब अगर एक्स सब्स्टिट्यूट ना होता तो नो डाउट उसकी डिमांड पे इतना फर्क ना पड़ता। तो क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है, वाई की जगह पे उसको यूज किया जा सकता है, तो वाई के जो कंज्यूमर होंगे दे विल आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्स। किस वजह से? क्योंकि वो एक्स वाई के कंपैरिजन में सस्ता हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई के प्राइसेस में चेंजेस ना आने के बावजूद भी क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी बट एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। रीजन क्योंकि एक्स के प्राइसेस कम हो गए, डिमांड फॉर एक्स विल गोज इंक्रीज, ड्यू टू विच रीजन, बिकॉज दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वाई। आफ्टर दैट द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप मीन्स पॉपुलेशन, कि एक कमोडिटी के जब प्राइसेस कम होते हैं तो ज्यादा बायर्स अब ऐसे हो जाते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मे बी वीकर सेक्शन में से भी लोग उठ के आ जाए, वो उसे परचेज कर सकते हैं। सो इट जस्ट लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड। सो दैट्स व्हाई आल्सो वी कैन कॉल कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, इनवर्सली रिलेट होता है। आफ्टर दैट द डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस मीन्स देखिए कि अब कुछ प्रोडक्ट हमारी लाइफ में इस तरीके के हैं जिन्हें हम पर्टिकुलर एक चीज में यूज ना करके बहुत सी चीजों में यूज करते हैं। लाइक वी कैन कॉल द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अब हमारे पास बहुत से ऑप्शन है यूज करने के। अदरवाइज वी कैन कॉल द मिल्क, मिल्क को हम यूज करते हैं मेकिंग कर्ड, चीज, बटर। तो अगर मिल्क के प्राइस कम हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो सारे काम घर पे ही करना शुरू कर देंगे, उसको ज्यादा यूजेस में लेके आएंगे। इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द मिल्क। So simply here we can call that the due to the decrease in the prices, the demand for a particular product will goes increase. Now the question arise, is there is any exceptional cases? अब देखिए कोई चीज एग्जिस्टेंस में आई है तो नो डाउट उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो देयर आर आल्सो सम पॉइंट्स और सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, एप्लीकेबल नहीं हो पाता। हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं तो हमेशा उसकी डिमांड बढ़ेगी। मे बी इट हैपन कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड भी कम हो जाए, राइट। सो देर आर सम केसेस इन विच वी कैन से कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होने से उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज होने से उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। एंड इन दिस काइंड ऑफ स्टेट जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसे स्लोप करता है, आई जस्ट शो यू। द डिमांड कर्व विल स्लोप लाइक दिस। जनरली जो हमारा डिमांड कर्व है वो इस तरीके से स्लोप करता है नेगेटिवली, बट इन दिस काइंड ऑफ स्टेट व्हाट विल हैपन कि हमारा डिमांड कर्व कैसे स्लोप करेगा, लाइक दिस। Okay, so simply here we can call that due to some of the exceptional cases, due to some of the reasons also there कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड ड्यू टू विच रीजन, देयर आर सम रीजंस। द फर्स्ट वन इज देयर, दैट इज द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स मीन्स कि जो प्रेस्टिजियस आर्टिकल हैं, कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो प्रेस्टिजियस हैं और उनको जनरली किस लिए डिमांड किया जाता है कि उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं। अगर उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे नो डाउट उनकी ऐसी एक स्टेट नहीं रहेगी कि वो मार्केट में एक प्रेस्टिजियस इशू पे चले। अब अगर हम देखें तो एप्पल आईफोन इज ए प्रेस्टिजियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, उसके प्राइसेस हाई हैं तो लोग उसे इस तरीके से यूज करते हैं। यही अगर उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे ना तो वो मार्केट में उसके लिए वो रेपो वो स्टैंडर्ड स्टेटस नहीं रहेगा जो प्रेजेंटली है, राइट। सो सिंपली दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर। प्रीशियस डायमंड्स लगा लो, है हाई लेवल की एक्सपेंसिव कार्स हैं, दीज आर आल्सो लाइक दैट कि इनके प्राइसेस हाई हैं तो इनकी डिमांड है, अगर इनके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे तो इनकी डिमांड भी
डाउन हो जाएगी। सेकेंड वन इज द गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स क्या होता है देखो, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं गिफिन गुड्स। इंफीरियर होते हैं सस्ती, सस्ती मीन्स घटिया वस्तुएं, लो क्वालिटी। बट गिफिन गुड्स क्या होते हैं, गिफिन गुड्स भी लो क्वालिटी के होते हैं, बट दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स, ज्यादा ही लो क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ पर मेनली क्या इम्पैक्ट आ जाता है देखिए, कि इनका जो इनकम इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। मीन्स कि अगर कस्टमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इन्हें लेना बंद कर देगा। नेगेटिव, इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर दिस विल डिक्रीजेस, और इनकम डिक्रीजेस डिमांड फॉर दिस विल इंक्रीजेस। बट यहाँ पर मेनली क्या चीज आ जाती है, इनका जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। मीन्स इन पे लो ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। कि अगर हम ये कहें जैसे कि इनके प्राइजेस जो है अगर वो बढ़ेंगे तो इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो नहीं, इन पे जो है प्राइस इम्पैक्ट पॉजिटिव आ जाता है। कि प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। सो जनरली दिस इज अ सिस्टम ऑफ द गिफिन गुड्स, जिसमें कि हम ये कहें कि गिफिन गुड्स का है ऐसे हाईली इंफीरियर गुड्स हैं जिनका हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, और इन पे जो है लो ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इन पे ऑपोजिट सिस्टम चलता है, इनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। After that, the last one point is there, that is the irrational judgment. Irrational judgment means the point of view or the mental setup of the consumers, we can call. अब देखिए जनरली इट हैपेंड कि बहुत से लोगों का एक मेंटल सेटअप होता है लाइक दैट कि कंज्यूमर क्या करते हैं, उसके प्राइस से उसकी क्वालिटी को जज करते हैं। कि सपोज हम ये कहें कि कंज्यूमर ये सोचेगा कि एक इरेशनल जजमेंट में वो ये सोचेगा कि अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस हाई हैं तो मींस उनके क्वालिटी अच्छी है। तो जनरली अब जैसे कि सपोज लगा लीजिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो रिचर सेक्शन जो है वो क्या कंसीडर करेगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी की है, तो क्वांटिटी जो होगी इसके लिए डिमांडेड वो ज्यादा हो जाएगी। द मेन थिंग, irrational judgment refers to a system, a mental setup जिसमें कंज्यूमर ये सोचता है कि जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई हैं उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। दैट इज कॉल्ड द irrational judgment. So in the case when the demand curve slope of demand doesn't hold good, तो वहां पर हमारा डिमांड कर्व कैसे स्लोप करता है, इट जस्ट स्लोप अपवर्ड व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो एज लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी that there is a this kind of system, prices are this, quantity is this, prices increase, quantity also increase, the demand curve will slope like this. So this is the situation when the demand curve slopes in a upward manner from left to right.